यहाँ में ऐसा सिचुएशन था कि the students were put in jail for almost 35 days and APSU maintained pin drop silence. सिर्फ pin drop silence नहीं है, they actually coordinated with the government in suppressing us. So that is how they failed. In the coming times this should not repeat. ऐसा सिचुएशन नहीं आना है जहाँ में एग्ज़ाम को 2 महीना पहले पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद पेपर मिलने के बाद भी पेपर को रीराइट कर रहा है चांदनी होटल में। और यहाँ में जिन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए था वो भी नहीं दिया। वो फर्स्ट एस्पेक्ट में भी द सरकार हैज़ फेल्ड। ये जो नीट का जो खुलासा हुआ एंड आफ्टर दैट द CBSE थिंग हैपन, जहाँ में स्टूडेंट्स लोगों को बहुत कम मार्क्स मिल रहा था एंड व्हेन दे आस्क फॉर द मार्कशीट द आंसर स्क्रिप्ट, उन लोगों को जो दिया गया वो आंसर स्क्रिप्ट किसी और का था। तो दैट काइंड ऑफ ब्लंडर डन बाय द हाईएस्ट एजेंसी, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। Hello everyone, this is Jamila and you're welcome to the space. Today I'm going to walk you into a conversation that is going to address the burning issues that the youths of Arunachal Pradesh are facing right now. But before we move further, let's just briefly look at what has happened in the past few years. I will specifically highlight the incident of 2022, the APPSC fiasco that has statewide alerted everybody, and then till now the issue is unresolved. It has left a lot of students and aspirants disappointed, disheartened. Many dreams have been shattered in a sense. And for today's discussion, we are joined by an individual who has been an integral part of this journey. Let me please introduce Mr. Tadak Nalo, who is the chairman of Arunachal Frontier Tribal Front. And he has been voicing for the students since the last few years and also the indigenous community. First of all, the space is once again very much happy to have you here. Okay, we will thank be you so talking much. about the same matter that you also did before. But then to start this discussion, sir, I will have to take you back to 2022. That is exactly where you became very prominent for the students as well. Sir, this has been अभी 4 साल हो गया है इसको होके, fiasco को होके, and it's still unresolved. Sir, where does it stand today? What exactly is the reason? सबसे पहले I'm very grateful to this space for giving me this opportunity to be able to come here और आप सबको बीच में एड्रेस करने के लिए, ये डिस्कशन के लिए। एंड कमिंग टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा है, APPSC पेपर लीकेज इशू, आई थिंक हम लोग का जनरेशन में एटलीस्ट दिस हैज़ बीन द मोस्ट बर्निंग एंड दिस हैज़ बीन द मोस्ट, इससे बड़ा इशू शायद हम लोग स्टेट में देखा नहीं है, एटलीस्ट इन आवर जनरेशन। तो वो ऐसा समय में निकला, वो ऐसा समय में खुलासा हुआ। In the year 2022, our whistleblower led Gyamar Padang sir, उन्होंने ये पर्टिकुलर स्कीम को उजागर किया, उसको खुलासा किया। After that, the sequence of events which followed 2022 से लेके till now, I think it has almost been 4 years now. तो यहाँ में बहुत कुछ हुआ है। इसमें जो भी ये पर्टिकुलर मूवमेंट को शुरू से जो भी फॉलो किया है, जो भी जुड़ा है, सभी ने इसको बहुत करीब से देखा है और सभी ने ये पूरा एंटायर मूवमेंट को हम सब ने जिया है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टेक अवेज, पॉजिटिव थिंग्स एंड ऑफ कोर्स द नेगेटिव, द थिंग्स व्हिच हैव बीन लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड। तो as far as the issue is concerned, अभी तक का समय में recently we are seeing lot of exams, yes. जैसे AE का एग्ज़ाम हुआ और combined civil service exams हुआ, JEE एग्ज़ाम हुआ, and I think PGT का भी कुछ एग्ज़ाम्स हुआ। तो all this examination में कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। That is the deserving candidates, I mean the deserving faces, वो सब का चेहरा भी दिख रहा है। तो ये सब देखने से आई थिंक इट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ अ प्रॉमिसिंग साइन। तो इससे पता चलता है कि आवर फाइट फॉर द लास्ट 4 years
have not gone in vain. यहाँ में जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बिकॉज हमारा एक ही मकसद था, ये सिस्टम में जो गड़बड़ हो रहा था दैट शुड नॉट रिपीट, एंड सेकेंडली जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है सो दे आर सपोज टू बी रिक्रूटेड. तो यहाँ में अगर एक भी कैंडिडेट विदाउट पेइंग for the post, if they're getting recruited, I think that is a success for us. That is the positive aspect. And as far as the negative aspects are concerned, there are still numerous issues which have not been addressed. So सबसे पहले I would like to pinpoint some of the unresolved points, like some of the unresolved issues. तो सबसे पहले I will say कि ये APPSC पेपर लीकेज स्कीम में जो भी इन्वॉल्व था, खास करके the officers and some of the prominent accused who were found guilty in this entire scheme, उन लोगों को अभी तक टर्मिनेट किया नहीं है. Okay. It has been more than almost 3 to 4 years. Otherwise, usually ये जो departmental proceedings है, it is not supposed to exceed 90 days. That means 3 months से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. But now it has been more than 3 years. But the departmental proceedings are still incomplete. That is first. The second point is that जो यहाँ का हम लोगों को ये बताया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर दिस, स्पेसिफिकली फॉर दिस एंटायर स्कीम, एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किया गया था. बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट दिस फास्ट ट्रैक कोर्ट हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड देयर ट्रायल प्रोसेस. जस्ट इमेजिन, जो भी इसमें इन्वॉल्व था उन लोगों का चार्जशीट अभी भी कंप्लीट नहीं है. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज़ दैट जैसे यहाँ पे CBI ED का जो इन्वेस्टिगेशन था, बिकॉज हम लोगों का मानना ये था कि बिकॉज CBI एंड ED दे आर दी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द कंट्री. तो उस हिसाब से हम लोगों का सोचना ये था कि बिकॉज अरुणाचल इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट एंड वी आर हार्डली 15 lakhs पॉपुलेशन. अगर इसको अच्छा से करेगा, अच्छा से इन्वेस्टिगेशन अगर किया जाएगा तो इट वोंट इवन टेक more than 5 months. So since the CBI and ED's takeover, almost 3 years हो गया, but still they have not completed the charge sheet. Sir, sorry to interrupt you here. Sir, recently this year even the NEET का leak हुआ है ना? Yes. NTA, National Testing Agency, India का biggest organization of examination, they themselves also failed in proper conduction of this exam. So reflecting on this, even though it's not whole Arunachal का सिर्फ नहीं है, it's पूरा nationally wide हुआ है, affect students. Sir, how would you assess this? Is this more of an institutional problem failure or is this a political failure? I would say it's an institution failure, but that is happening because of the political failure. Okay. Because if there was a political will, then the institution will be corrected. जी. The reason why the institutions are not corrected is because there is a lack of political will. तो जैसे you're talking about the NEET examination which has been which has surfaced as the paper getting leaked. जी. तो in the last 12 years, if we say last 12 years from the year 2014 onwards, देखा जाने से approximately not less than 90 paper leakage cases have come up. That too in different states. different examination. और अब भी जो recent जो हुआ है, जी. ये नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीकेज जो 2014 में भी हुआ था. Okay. उस समय में भी द पेपर वाज रिकंडक्टेड. उसके बाद नाउ रिसेंटली ये जो नीट का जो खुलासा हुआ, एंड आफ्टर दैट दैट CBSE थिंग हैपन, जहाँ में स्टूडेंट्स लोगों को बहुत कम मार्क्स मिल रहा था, एंड व्हेन दे आस्क फॉर द मार्कशीट, द आंसर स्क्रिप्ट, उन लोगों को जो दिया गया वो आंसर स्क्रिप्ट किसी और का था. तो दैट काइंड ऑफ ब्लंडर डन बाय द हाईएस्ट एजेंसी, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, एंड देन आफ्टर दैट द CUET दैट थिंग हैपन. अभी एग्जाम हैज़ बिन पोस्टपोन, सो आई डू नॉट नो व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट गेटिंग एड्रेस्ड. तो अभी जो हमारे स्टेट में APPSC पेपर लीकेज का जो खुलासा था, इफ़ द गवर्नमेंट रियली वांटेड, शायद वो लोग 6 months भी इसको एड्रेस करने के लिए नहीं लेना चाहिए था.
The same problems are happening in almost all the examinations in almost all the states. तो अभी ये का आई थिंक SCC एग्ज़ाम भी SSC एग्ज़ाम में भी ऐसा अभी खुलासा हो रहा है. तो दिस इज़ अ कलेक्टिव फेलियर. सबसे पहले तो इसको करेक्शन करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल विल, एंड आफ्टर दैट व्हेन दे टेक द करेक्टिव मेजर्स ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल बी टेकन केयर. तो वो विल ही नहीं है. तो you can see, as you can see, so much of chaos are happening, so much of protests are happening, but still the union education minister has not even resigned. Okay, so not to divert the point, but now that we're talking about the APPSC का जो leakage हुआ था ना, the paper का, it has still now it has left a mark for all the people ना. Now the talk is still going on. Everybody every now and then speaks about कि अभी तक resolution आया ही नहीं है ना. But then a lot of public people also cannot comprehend कि what exactly मतलब resolve करेगा तो how will government resolve? And then people who are advocating कि इसका resolution लाओ, what kind of resolution are they demanding? So can you just share with us your insight on what kind of resolution is, apart from the suspension of the officials, apart from scrutinizing it more, मतलब what is the deeper vision for this आगे जाके ताकि it can never happen again? Yes, actually when we took up this issue, हम लोग दो पर्सपेक्टिव से उठाया था. The first one is the ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है या फिर द करेक्टिव मेजर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है दे हैव टू बी पनिश्ड, एंड वॉट एवर हैपन हियर उसको करेक्शन करना था. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट वाज द रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट कि ये चीज़ जो है इन द कमिंग टाइम्स दिस शुड नॉट रिपीट. ऐसा सिचुएशन नहीं आना है जहाँ में एग्ज़ाम को 2 महीना पहले पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद पेपर मिलने के बाद भी पेपर को रीराइट कर रहा है चांदनी होटल में, एंड देन जो फाइनल अवार्ड शीट को उसको मैनिपुलेट कर रहा है. दैट सिचुएशन शुड नॉट हैपन. तो उसके लिए वी हैव आस्क फॉर जो ऑलरेडी इसमें द फर्स्ट कंसर्न था जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है कि द फ्यूचर में अगर कोई भी करने का कोशिश भी करे they'll have to at least think 10 times. ऐसा पनिशमेंट देना है. द एग्जाम्पलरी, द बेंचमार्क पनिशमेंट, वो हमारा कंसर्न था. द सेकेंड वन इज़ द रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट. तो अभी सोच के देखो, आई मीन द पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया, जो मैंने अभी जिक्र किया, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेशन पार्ट. वो अभी तक चल रहा है, बट दैट हैज़ नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट जितना तक होना चाहिए था. दैट इज़ फर्स्ट. और यहाँ में जिन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए था वो भी नहीं दिए. वो फर्स्ट एस्पेक्ट में भी द सरकार हैज़ फेल्ड. And in the second aspect, that is the reformative part, we have asked for a policy, for a law, that is the Prevention of Unfair Means Act. वो सिर्फ APPSC तक सीमित नहीं होगा. Any examination process, either through APPSC or APSSB or through any authority, कोई भी governing body से, उसमें ये चीज़ लागू होना है कि if anybody is found practicing this malpractices and all, they have to be subjected to such punishment कि वो लोग वो चीज़ को करने के लिए एटलीस्ट 2 बार सोचना है. तो अभी जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट तो डेफिनेटली लेके आया है, बट दैट इज़ अ टूथलेस टाइगर, क्योंकि इसमें पनिशमेंट इज़ लाइक इट इज़ नॉट इवन अ पनिशमेंट इफ़ यू सी इट प्रॉपरली. यहाँ में जैसे कि बोलता है हम इसको 1 करोड़ का पनिशमेंट लगा देगा. आई वॉन्ट टू टेल यू, the question paper which were being sold, per question paper was not less than 50 to 60 lakhs. आप इमेजिन करो, एक ही क्वेश्चन पेपर को हम 100 जेरोक्स करके 100 लोगों को बेच देगा. ईच पेपर में हमको 50 लाख मिल रहा है फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज. अभी तो ज़्यादा ही होगा. तो 100 आदमी में हमको कितना मिलेगा? नॉट लेस देन 50 करोड़. तो 50 करोड़ में से 1 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है? इज़ दैट अ पनिशमेंट? सो हमारा कंसर्न ये था कि बोथ द एस्पेक्ट, द रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो एंड द अदर एस्पेक्ट जहाँ में जिसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना था, तो समहाउ इसमें भी नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है.
और अभी जो आप बोल रहे हैं, सी एक स्पेसिफिक चीज़ बोलने के लिए आई मीन ये इशू जो है इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड. आई कैन नॉट जस्ट पिन पॉइंट वन पर्टिकुलर एरिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट. और फास्ट ट्रैक कोर्ट किसने असाइन किया? द स्टेट गवर्नमेंट. व्हाई द इन्वेस्टिगेशन व्हाइल द ट्रायल प्रोसेस हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड? 3 साल हो गया. वेयर इज अकॉर्डिंग टू द ये IPC एंड CRPC जो अभी BNSS और PNS में चेंज हो गया है, अकॉर्डिंग टू दैट नॉट लाइक 90 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए जो चार्जशीट जो फाइल करता है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं है. दैट इज़ वन. उसके बाद उसके अलावा यहाँ में जैसे कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स यहाँ में जो भी इन्वॉल्व था, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. हाँ, उन लोगों को अभी तक क्यों डिसमिस नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर तकेत जरंग. आई एम सॉरी उसका नाम को बार बार लेना पड़ता है, बट लेकिन ये पूरा एंटायर स्कीम में ही सो फार ही इज फाउंड टू बी द किंग पिन. उसको ही अभी तक टर्मिनेट नहीं किया है. 3 years. इमेजिन उसको नहीं कर पाए तो अभी बाकी लोग को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज. क्यों नहीं कर रहे? एक तो बिकॉज he was the actual broker of the higher-ups. That is why he is not being terminated. The second one could be because he has lot of information. तो terminate करने से maybe the Pandora's box is going to be opened. That could be the possibility. Otherwise इसको dismiss नहीं करने का कोई reason नहीं बनता है. अभी उसको नहीं किया तो you forget about the rest of the accused. तो my point is that कि अभी जो पेपर लीकेज वाला जो कंसर्न है, जो रिफॉर्मेटिव पार्ट इज स्टिल लेफ्ट अनरिजॉल्व, एंड ऑफ कोर्स द प्यूनिटिव पार्ट दैट इज स्टिल लेफ्ट अनरिजॉल्व. तो टेक्निकल है, इसमें लेमैन के लिए स्पेशली अम्मा बाबा लोग के लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट फॉर द यंगस्टर्स अभी अगर एक एक पॉइंट करके गिन के सुनाना है बोलने से आई कैन स्टिल रीड इट आउट क्योंकि इट इज़ ऑल इन माई फिंगर टिप्स. क्योंकि ये इशू में इतना डेप्थ में घुसा है कि दैट्स व्हाई आई फील कि द इशू इज सैडली अभी तक अनरिजॉल्व है. We are coming to the ongoing debate that is happening regarding the 80-20 ratio. कोई बोलता है होना है, कोई बोलता है नहीं होना है. And then the recent 13-point charter of demands by the APSU president. All of these issues have been the dominant public disclosure. Sir, इसमें you have also mentioned regarding APSU in connection to the fiasco itself. So I would like to follow up on that. यहाँ पर you have mentioned कि APSU has been very quiet throughout the whole process, as in, and to quote you, don't mind me, sir, but you have said it like multiple times that APSU has spectacularly failed us, especially when we needed them the most. But then, sir, there is no point in now blaming what's already gone. But अभी जो ये election अभी हुआ है and the results are already out, how do you assess the present APSU का body को, now the members of the APSU? Yeah, ऐसा है APSU का जो if you see the history of APSU बहुत पीछे नहीं जाएगा, but only with respect to APPAC. क्योंकि as far as I remember हम जितना APSU को करीब से देखा है 2014 से देखा है, बिकॉज उस समय में ही दिस एंटायर थिंग वाज कमिंग टू द लाइमलाइट. उससे पहले भी था, बट उसमें इतना APSU का या फिर प्रोटेस्ट का इतना हम लोग को पता नहीं चला. बट दिस प्रोमिनेंट देयर वर प्रोमिनेंट सिचुएशन इंस्टांसेस जहाँ में APSU, एज यू हैव सेड, दे हैव स्पेक्टेकुलरली फेल्ड द स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इन द ईयर 2014, जब उसमें भी पेपर लीक का केस था. उसमें ऐसा था कि GS पेपर 2 जो है एग्ज़ाम से आई थिंक 1 हफ्ता पहले ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा था. तो जब एक्चुअली एग्ज़ाम हुआ तो वट एवर वॉज सर्कुलेटिंग दैट सेम क्वेश्चन केम. तो उसको लेके उस समय में बहुत बड़ा सा हंगामा हुआ. आई थिंक देयर वाज अ पर्टिकुलर कैंडिडेट सिस्टर ओजुम पेरिंग. तो उन्होंने आई थिंक 72 आवर्स का भी फास्ट हंगर स्ट्राइक किया था.
At that point of time also, Apsu had maintained pin drop silence. That is the first instance. The second instance was in 2017. I think that is one of the most recent memories which we have. उस समय में क्या हुआ था, अभी जो रिसेंटली हम लोगों को पता चला है कि जैसे मिनोटी बोरांगलो का जो केस है, चांदनी होटल का जो एपिसोड था, वो 2017 का एग्ज़ाम था. तो उस समय में क्या हुआ कि देयर वाज ह्यूज एनोमलीज. उस समय में तो हम लोगों को पेपर लीकेज का कुछ अंदाज़ा नहीं था. तो आई वाज वन ऑफ द कैंडिडेट. तो उस समय में हम लोगों का मानना ये था कि इतना सीरियस ग्रोस एनोमलीज हुआ था, तो हम लोग बोलना ये था कि जब तक इशू को एड्रेस नहीं करेगा एग्ज़ाम को कंडक्ट मत करो. दैट वाज द सिंपल रिक्वेस्ट. लेकिन अथॉरिटी ने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया, ये कर दिया. बाद में मजबूरन वी हैड टू प्रोटेस्ट. और वो एग्ज़ाम में मोर देन 800 कैंडिडेट्स हैड बॉयकॉटेड द मेंस एग्ज़ाम. उसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1200 कैंडिडेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द मीन्स दे वर द एलिजिबल कैंडिडेट्स. लेकिन 1200 में से 800 प्लस कैंडिडेट्स हैड बॉयकॉटेड एंड आई वाज वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड बॉयकॉटेड. तो उसमें हम लोग जो है 2017 का समय में किंग कप स्कूल के बाहर में आप लोग शायद फुटेज देखा होगा. तो आई वाज ऑल्सो वन ऑफ देम. उसमें जो लाठी चार्ज हो रहा था, वाटर कैनन फेंक रहा था हम लोग को ऊपर में. फिर हम लोग को जेल में भी रखा एक रात. तो इसमें क्या आपसू का कोई वो नहीं हुआ? या आई एम कमिंग टू दैट. या उसमें फिर वी लाइक 28 डेज टेनिस कोर्ट में सोया विदाउट अ ब्रेक जब एग्ज़ाम चल रहा था. तो उसमें अपसू का क्या स्टैंड था, आई वांट टू, दैट्स व्हाई आई वाज वांटिंग टू से. उसमें अपसू जो है ये इशू को सॉल्व करने के बजाय उन्होंने क्या बोला कि रिंग लीडर को पकड़ के अरेस्ट करना है. दैट मीन्स जो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट को लीड करने वालों को पकड़ना है, उसको जेल में डालना है. ये अपसू का स्टैंड था. तो उस समय में देयर वाज अ कैंडिडेट ब्रदर ततर गांव. ही हैड अंडरटेकन फास्ट अनटू दैट, ही हैड गॉन टू दैट एक्सटेंट प्रोटेस्ट में. तो हम लोग भी सब साथ में उसमें जुड़ा हुआ था. तो इमेजिन, ये था स्टूडेंट का सबसे बड़ा, उस समय का सबसे बड़ा इशू. और उस समय का अपसू का जो स्टूडेंट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टैंड है. इंस्टेड ऑफ गेटिंग द इशू ऑफ द स्टूडेंट्स एड्रेस, दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, ये लोग को पकड़ो, ये लोग को जेल में डालो. आई डू नॉट नो वो लोग क्या सोच के बोला है. तो दैट इज हाउ दे स्पेक्टेकुलरली फेल्ड अस अगेन. एंड थर्ड टाइम दे फेल्ड अस spectacularly was in the year 2022. टाइम क्या हुआ कि शुरू में when we took up the issue, it was ग्यामर पादंग सर, तेचीपुरु सर, myself and our team. और हम लोग जो है अपसू और अंशु के साथ में एसोसिएट हुआ था. तो it was a combined joint representation, joint issue जो हम लोग टेकअप किया. तो सबसे पहले तो अपसू चोरा है, वो भी बीचों बीच में इशू एड्रेस होने से पहले. एंड देन सिर्फ चोरा नहीं है, हम लोग को सप्रेस करने में लग गया. तो यहाँ में ऐसा सिचुएशन था कि द स्टूडेंट्स वेर पुट इन जेल फॉर ऑलमोस्ट 35 days एंड अपसू मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस. सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है, दे एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड विद द गवर्नमेंट इन सप्रेसिंग अस. सो दैट इज हाउ दे फेल्ड. तो अभी आप जो बोला है एपीपीएससी एंड अपसू, I mean, this nomenclature sounds same, but they stand just the opposite. Okay. जब भी APPSC related कुछ भी इशू होता है, the APSU instead of standing in the forefront, वो लोग उल्टा साइड में गवर्नमेंट का साथ में खड़ा करके हम लोग को उल्टा सप्रेस करता है. And this has been happening from the last, I don't know, 2014 से तो हम देखा है, maybe before that also, I do not know. लेकिन most prominently from 2014 onwards. तो अभी आप जो बोला है, this is what happened in this all this time. तो अभी का जो present अपसू, as far as the present अपसू team is concerned, I think हमको election का समय में भी many people they reached me out. Yes. From various candidates. I do not want to mention any names. No, लेकिन you don't have to. Yes. almost like मेजर जो कैंडिडेट्स था वो लोग रीच आउट किया, उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका बिहाफ में लॉट ऑफ पीपल. मेरा सिंपल सा अपील था, यू डोंट हैव टू रीच आउट टू मी और रीच आउट टू एनीबडी. यू जस्ट प्लेस द स्टूडेंट्स हाईएस्ट बिगेस्ट
student centric issue as your top agenda, जी then I will support you, with my eyes closed. I will blindly support that particular candidate. तो मेरा उसमें 3 कंसर्न था. मेरा बोलना ये था कि अगर कोई कैंडिडेट, if they come up and say कि they are going to get the statue of honesty constructed, I'm with that candidate. यस If that candidate says, I'm going to ensure that the whistleblower act is going to be enacted, I'm with that candidate. And thirdly, if that candidate says कि जो APPSC paper leakage scheme which has been left unresolved, जी इसको मेरा टेन्योर में हम इसको रिजॉल्व कराने का कोशिश करेगा, then I would stand with that candidate. I think I had said it openly also. But sadly, I didn't find such a candidate. Maybe like इंडोर में ऐसा कुछ बोला होगा, but as far as their manifesto is concerned, I didn't see any candidate. तो अभी जो present अपसू टीम है, I do not know how far they will go. लेकिन recently जैसे स्टेज ऑफ ऑनेस्टी में उन लोगों ने जो एक इनिशिएटिव उठाया, I have to appreciate. I mean, हम लोग तो अभी तक अपसू को गाली देखे घूम रहा था. तो when they do something good, we have to appreciate that also. That is one. And in the same breath, I would like to look forward with the same enthusiasm, with the same optimism that जो APPSC पेपर लीकेज का स्कैम है, जो अनरिजॉल्व है, इसमें ये नहीं बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर टीम उठाए तो वही रिजॉल्व कराना है, ये उठाए तो वो, दैट्स नॉट नेसेसरी. दिस इशू बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस. तो इसमें चाहे कोई पहले उठाया हो या ना उठाया हो, यू स्टिल कैन टेक अप द इशू फ्रॉम वेर एवर इट इज, आप जहाँ में भी है. तो आई होप कि APPSC paper leakage issue being the student-centric highest issue, and APSU being the apex organization of the students, I hope that they will, जो unresolved होके बैठा हुआ है, they will look into it. So before we move forward now with the most concerning, abhi AFTB is also centerpiece of discussion है, the 80-20 ratio. Before we move to that, sir, you have also mentioned some grievances regarding जो bylaws of this election. You Yes. have mentioned that it's changed, but then, sir, I think one of the reasons why people are not aware about it is connecting to what you said. Not every student has the right to vote for this APSU election. Yes. That is one reason why people don't know कि bylaws change हुआ है. It goes back to उनको bylaws क्या है वो पता भी नहीं है. So from what to what has it changed? So can you tell us briefly? Yeah. Actually, even during APSU election, उससे पहले many people had reached me out like regarding ये इसी के लिए पता नहीं, somebody had posted in the platform कि Tadak Nalo is going to contest for the APSU president, ऐसा कुछ था. That was a news for me also. उस समय में. Also, you were not intending to, because No. even I was intending to ask you that question कि आप उठने के लिए Yeah. did you try करके? No, actually that was never in the wildest of my dreams. हम कभी सोचा भी नहीं था. Because to be very honest, ये जो entire movement में जो जुड़ा है, this was also accidental. ये हम कोई student body से या फिर ऐसे हिसाब से नहीं, as a deprived candidate उस हिसाब से जुड़ा था. तो APSU, जहाँ तक APSU is concerned, I have not zero, I would say minus experience in student politics. मेरा कुछ भी इसमें experience नहीं है और ना तो मेरा कोई intention भी है इसमें participate करने का. लेकिन I remember for 3 days continuously, I must have received not less than 1,000 calls. That too from various numbers and from different districts of the So state. what exactly were they trying to ask you? They were asking me to contest. Oh, Like okay. some were asking me, are you contesting? And I said ki nahi karo. They were like emphasizing. जी. Then all this request came, all this, many people they came, they, in fact, I remember some even they started donating Mithun also. Approximately around 18-19 Mithuns already donate हो चुका था. So all those things, they were, like people were coming up with this ideas. वो लोग खुद ही हम, like they were reaching me out. I think that was overwhelming. और शायद इतना ज़्यादा calls, इतना ज़्यादा messages in a very short span of time. That was something which I've never experienced.
तो जब इतना कुछ आया, इतना वहाँ से पब्लिक से, आम जनता से वो जब रीच आउट किया, तो दैट एक्चुअली फोर्स्ड मी टू थिंक, अच्छा तब तो करके देखने में क्या प्रॉब्लम है. Oh, so you did. Yeah, Okay, after this calls and all, that's when I thought about, हाँ अगर ऐसा बात है तो let me try. Actually I don't have experience, I do not know how it happens also. Nomination कैसे फाइल करना है, exactly क्या procedure है. That's how I started asking questions. Like then I inquired some people, जैसे कोई DSU members लोग था, उन लोगों को मैंने पूछताछ किया कि यहाँ में कैंडिडेट कैसे करता है. तो दैट्स व्हेन दे टोल्ड मी कि देयर इज बाय लॉ, आपसू का कुछ बाय लॉ है, एक बार गो थ्रू करके देख लो. तो दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो कि आपसू का भी बाय लॉ एग्जिस्ट करता है. तो आई वेंट थ्रू द बाय लॉ, द मोस्ट रिसेंट वन. तो उसमें देखा कि आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025, जस्ट 2-3 months बिफोर द इलेक्शन, जी. उन लोगों ने बाय लॉ को चेंज कर दिया. दे पुट वन क्लॉज, दिस क्लॉज वॉज नेवर देयर बिफोर. उसमें ये क्लॉज लगाया कि इफ़ यू वांट टू कॉन्टेस्ट एज द आपसू प्रेसिडेंट और जीएस, तो यू हैव टू बी आइदर, या तो आप डीएसयू का मेंबर होना पड़ेगा, या तो आप आपसू का फॉर्मर कुछ मेंबर होना पड़ेगा. तो आई डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दैट कैटेगरी. तो बाय डिफॉल्ट आई वॉज नॉट एलिजिबल. तो उसको देख के देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली गोइंग थ्रू द बाय लॉ. इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या. देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि आपसू में इतना सारा पैसा क्यों इन्वॉल्व होता है. ये बार जो हुआ है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. इनफैक्ट इससे पहले भी जो हुआ था, ऑलमोस्ट 250 करोड़ वॉज स्पेंट ओवरऑल. उससे पहले भी ऐसा हुआ. तो ईयर आफ्टर ईयर लाइक इन्फ्लेशन, ये बार तो शायद उससे ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा, आई डू नॉट नो. तो दैट्स व्हेन आई गॉन थ्रू द बाय लॉ. उसमें आई सो सम सीरियस लूप होल्स. तो ये जो था, ये जो पर्टिकुलर क्लॉज जो लगाया, आई थिंक देयर इज अ वेरी क्लियर एजेंडा बिहाइंड दैट. उन लोगों का एजेंडा ये था कि जो ऑलरेडी आपसू में है, जो ऑलरेडी डीएसयू में है, उसके अलावा कोई करना चाहता तो वो लोग को अलाउ ही नहीं है. दैट मीन्स दे वर मेकिंग इट एक्सक्लूसिव. हम लोग का एक ग्रुप में है, सिर्फ हम लोग में से ही होना है. जैसे कि टुडे आई एम द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट टाइम यू विल बी द वन, थर्ड लाइक आफ्टर दैट ही और शी विल बी द वन. तो ऐसे ऐसे करके वो लोग आपस में ही पास ऑन कर रहे हैं. वेयरएज अगर ये जो लीडर जो पास ऑन कर रहे हैं एक दूसरा में, अगर इफ नन ऑफ देम आर डूइंग देयर वर्क, तो उसका जगह में तो कोई फ्रेश आना चाहिए ना. दैट मीन्स दे आर क्लोजिंग द डोर उसी जगह में कि कोई फ्रेश आना नहीं. दैट इज फर्स्ट लूप होल आई फाउंड. द सेकेंड लूप होल आई फाउंड वॉज दैट कि यहाँ में अरुणाचल में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स हैं. तो उसमें से वोटिंग राइट्स किसको दे रहे हैं? ओनली टू अराउंड 6,000 वोटर्स. और 6,000 भी सब मारने नहीं मिलता है, उसमें से बहुत लोग मारने आता भी नहीं. तो मेरा ये कंसर्न था कि यहाँ में जैसे कि यू मस्ट हैव सीन, वोटर लोग को किडनैप कर रहा है वोटिंग से पहले, 5-star होटल में बिठा रहा है फॉर मंथ्स. आई मीन ऑल दिस देयर मीन्स किसी को गाड़ी खरीद दे रहा है, किसी को बाइक खरीद दे रहा है, किसी को मोबाइल, किसी को ज़मीन दे रहा है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज नंबर ऑफ वोटर्स आर लिमिटेड. खरीद सकता है. इफ सपोज नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम 6,000 से आप सपोज उसको बढ़ा के 20,000 वोटर कर देगा, हाउ मेनी आर यू गोइंग टू बाई? हाउ मेनी वोटर्स आर गोइंग टू बाई? तो मेरा सिंपल से कंसर्न था कि ये मनी जो इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज नंबर ऑफ वोटर्स आर लिमिटेड एंड इट इज़ ईजी टू बाई. लेकिन आप अगर इसको एक्सपेंड कर देगा, इसको खोल देगा कि फ्रॉम क्लास 12 एंड अबव, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इफ दे आर मेड एलिजिबल, आप इमेजिन करो हाउ मेनी आर यू गोइंग टू बाई? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू गोइंग टू कीप इन दी 5-star hotel for months? That is next to impossible, right? So logically, allow me to please counter that. Yeah. क्योंकि since you also mentioned कि ये जो election होता है आपसू में भी somewhere the government is involved. तो सर it also goes for the national elections जो हर साल होता है, हर 5 साल में होता है. It is practically every citizen goes for the voting and then
whole population, let's say, उसमें involvement होता ही है, the corruption in terms of money distribution, voting bank ना votes खरीदता है. So if money is involved, sir, I don't know. I don't think increasing the number of voters will change the system of APSU at least. आपका आप जो बोल रहे हैं that also makes sense. लेकिन आप सोच के देखो, अरुणाचल में in the general election, per voter starts with 1 lakh in the recently concluded election. आपको लगता है per voter 1 lakh यूपी में देता है? सर अगर डिमांड ऐसा बढ़ जाएगा तो भाव भी घट जाएगा ना. बिकॉज यूपी में वी आर हार्डली 15 lakhs पॉपुलेशन है, और यूपी में कितना है? ऑलमोस्ट अराउंड 12 करोड़, शायद उससे भी ज़्यादा है पॉपुलेशन. अभी आप किस को एक आदमी को 1 लाख देना शुरू करेगा, हमारा मीन्स देश में पैसा नहीं बचेगा, एक ही स्टेट में ख़त्म हो जाएगा. तो माई पॉइंट इज़ दैट कि दिस कुड बी वन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, लेकिन उससे कम्प्लीटली होगा बोल के नहीं है. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एग्जाम्पल ऑफ मिज़ोरम का पॉपुलेशन इज़ हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन. दैट मीन्स हमारा 15 lakhs पॉपुलेशन है, तो उन लोगों का 7.5 lakhs है. लेकिन चौंकाने वाला बात है, सरप्राइजिंग पार्ट इज़ दैट कि वहाँ पे मनी कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. हाउ? It is not based on the population. There the people are aware, the voters are aware, the candidates are aware. लेकिन वो चीज़ जो यहाँ में ट्रांसलेट अभी तक नहीं हो पा रहा है. तो अभी जो वोटर राइट्स को एक्सपेंड करने का, दिस इज़ वन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, बट दिस इज़ नॉट द ओनली ऑल्टरनेटिव. आफ्टर दैट मेरा जो सुझाव था ये बायलॉ में, जो ये भी था कि जो कैंडिडेट जो है, कोई भी कैंडिडेट, वो अपना मैनिफेस्टो को ड्रॉ करके लेके आना है, कंपल्सरीली, मैंडेटरीली. और जो भी मैनिफेस्टो ड्रॉ करेगा उसका टाइमलाइन भी देना है, बिकॉज दे आर कमिंग हियर ओनली फॉर 3 years, राइट? तो आप ऐसे एक इशू उठा देगा जो फॉर एग्जांपल चकमा आजुन इशू, ऐसा एक इशू है हम लोग जन्म होने से पहले का है. अभी हम लोग ऐसे पॉइंट में आ गया कि अभी भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है. तो माई पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ में जो भी कैंडिडेट आता है, they are supposed to come up with a timeline कि ये मेरा मैनिफेस्टो है and I'm going to resolve this issue in this period of time, 6 months, 1 year. Upon failure, any sort of they should be disqualified if they do not have such. और तीसरा मेरा उसमें सुझाव ये था कि in this bylaw itself एक clause डाल दो, put one clause within this bylaw. यहाँ में ये लिखो कि if any candidate is found to buy voters and if that can be proven, उसको dismiss कर देना, disqualify कर देना. तो ऐसा में क्या होगा कि I know it might sound hypothetical, I know it might sound no, but see sir, it sounds very nice on the outside. It sounds like wow, now the big change will happen. But the thing is sir, especially in a democratic country, sir, India has been in क्या डेमोक्रेसी एंटर हो गई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 75 years ज़्यादा हो गया है. एंड सर आई डोंट थिंक इट एग्जाम्स, स्पेशली इन आई एम सो सॉरी फॉर डिसएग्रीइंग विथ यू ऑन दिस, बट आई डोंट थिंक दिस सिस्टम एग्जाम्स अपसू फ्रॉम एनीथिंग. क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन में ही ऐसा हो रहा है कि कोना कोना तक दीज पीपल हु हैव नॉट इवन लर्न टू रीड बुक्स आर सपोर्टिंग अ लीडर, यू नो, जहाँ बुक्स नहीं पहुँच रहे वहाँ झंडा पहुँच रहा है. ओके, so this system sounds very beautiful like a, you know, very beautiful book cover, but अंदर का पढ़ ही नहीं पाएगा. It sounds something similar to that. You could disagree with me on that. Yes, of course. A lot of people will disagree with me in this particular clause. क्योंकि मेरा मानना ये है कि यहाँ पे अपसू इलेक्शन में why 300 crores are being spent? For what? Is अपसू post, whether you're president or GS or whatever, is it a constitutional position? Are you getting salary? No, it is just a pressure group. उसको ना उसको सैलरी मिलता है ना उसको गाड़ी मिलता है. बट यहाँ में ऐसा एक सिस्टम बना दिया है कि अपसू बिकॉज ऑफ इट्स लेगेसी दे हैव द रेपुटेशन ऑफ क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑन रियल इश्यूज. तो अभी वो रियल इशू को दबाने के लिए कैंडिडेट को स्टार्टिंग में ही कॉम्प्रोमाइज कर देता है. तो दैट इज वाई दिस मनी कल्चर इज मीन्स जो जनरल इलेक्शन में था उससे ज़्यादा यहाँ में हो रहा है इन द स्टूडेंट इलेक्शन. तो मेरा ये पर्टिकुलर क्लॉज को डालने का रीज़न ये है, इट माइट साउंड रेडिकल, इट माइट साउंड हाइपोथेटिकल,
हम तो ये बोलेगा अगर आपको खर्चा ही करना है जी तो आप अपना जो एजेंडा है, आपका मैनिफेस्टो है, उसको प्रमोट करने में खर्चा करो, बट डोंट बाय द वोटर्स, डोंट यूज इट टू बाय वोटर्स। तो ऐसा में क्या होगा कि जैसे हमने बोला कि जो वोटिंग राइट्स को एक्सपेंशन, जी that is one of the steps, and this is the next step. And I know it cannot be limited in this two particular clause also. but it's a practical Yeah, alternative. किया जा सकता है। See, for example, I know बहुत जगह में ऐसा है, because we are all human being, right? And corruption बोलने से तो somewhere it is a way of life. Corruption actually में हम उसको 100% eradicate नहीं कर सकता है, but ऐसा भी नहीं होना है कि you know it becomes way too glaring. जी इतना सैचुरेशन पॉइंट तक भी नहीं जाना है। तो इसलिए मेरा जो कंसर्न ये था, ये जो पर्टिकुलर क्लोज को लेके, अगर ऐसा क्लोज लगाएगा तो दैट विल बी ए स्टार्ट कि हम अपसू जब भी सुनता है तो पैसा, अपसू जब भी सुनता है तो पैसा, जितने का बाद उसका घर में सबसे पहले फॉर्च्यूनर 2 पहुंच जाएगा, वो भी सरकार से। उसके बाद दे विल ब्रिंग दिस, दे विल ऑफर मनी एंड स्कीम्स एंड ऑल। वाई दिस इज हैपनिंग? दैट इज बिकॉज वो लोगों को पता है कि ये इसको अभी से कॉम्प्रोमाइज़ करके रखना है। अगर इफ़ एनी कैंडिडेट स्पेंड्स अराउंड 50 करोड़ टू विन दिस इलेक्शन, तो उसमें से तो 50% जो है गवर्नमेंट से या फिर कहीं से स्पॉन्सर आया होगा, लेकिन 50% विल बी हिज ओन मनी। तो वो तो सब कुछ लगा के कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट? वो भी तो रिकवर करेगा ना। जी जी तो माई पॉइंट इज दैट कि वो सिचुएशन क्रिएट करना ही क्यों? आई नो इट्स ईजी टू से दिस फ्रॉम आउटसाइड, हम वो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, इसलिए शायद मेरा लिए बोलने बहुत आसान है। बट मेरा ये भी मानना है कि अपसू का जितना भी हम उसको जितना भी गाली देने से भी, जितना भी वो बोलने से भी, बट आवर स्टेट नीड्स दिस इंस्टीट्यूशन। सेंटर ऑफ डिस्कशन जिसको Okay. आप ही लीड कर रहे थे, 80-20 रेशियो, एंड यू ऑल्सो मेंशन रिसेंटली स्क्रैपिंग ऑफ द 20% एज वेल। यस, So obviously, for some people, it's a new topic. 80-20 ratio. Some might have just gotten to know about this. So can you just, in a very common language, for Yeah. people to be able to understand, ki, what is it? What is the ratio about, and why should people know about this ratio? yes. In very layman terms, 1990 में, in the year 1990, that means exactly 36 years ago, ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है 80-20 वाला, दिस वाज स्टार्टेड। जी तो उसमें ऐसा था जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 पोस्ट है, APPSC या फिर APSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है फॉर 100 पोस्ट, तो उसमें ऐसा है कि 80%, दैट मीन्स 80 पोस्ट जो है APSC के लिए रिजर्व है, एंड 20%, दैट मीन्स 20 पोस्ट जो है उसको अनरिजर्व करके रखा है। अनरिजर्व मीन्स APSC कैंडिडेट भी उसमें जा सकता है और नॉन APSC भी जा सकता है, whoever outscores। यस तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड जो है, इट लुक्स लॉजिकल, अरे 80% तो रख दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और 20% अगर आप कैपेबल है तो आप 20% भी ले सकता है, फेयर इनफ। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये शुरू हुआ कब? 36 ईयर्स अगो, और ये 36 ईयर्स में ये 20% को ऑप्टिमाइज कर करके अभी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या फिर यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ऐसा है कि देर आर मोर नॉन APSC एज कम्पेयर टू APSC। जी इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत इन ऑल एस्पेक्ट्स। जी तो दूसरा बात ये है कि 1990 में दिस क्राइटेरिया मेड सेंस, जी क्योंकि उस समय में जो लिटरेसी रेट था इट वाज ऑन सिंगल डिजिट, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट था वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो पोस्ट हजारों में होगा, कैंडिडेट मुश्किल से 3-4, तो ऑब्वियसली वी नीड पीपल टू वर्क, राइट? तो उस जमाना में ज़रूरी था। लेकिन 36 ईयर्स डाउन द लाइन, दैट मीन्स आज हम 2026 में हैं, जस्ट इमेजिन आज 10 पोस्ट के लिए 26,000 कैंडिडेट्स आता है। आज MTS पोस्ट के लिए PhD स्कॉलर लोग भी अप्लाई करना पड़ रहा है। दैट इज द सिनेरियो नाउ। और उसके अलावा अभी ऐसा भी है कि ये जो 20% जो अनरिजर्व करके रखा हुआ है, ये जो है बिकॉज हमारा स्टेट जो है इट्स मुश्किल से लाइक 15 lakhs पॉपुलेशन,
और 15 lakhs में से भी हर कोई कैंडिडेट तो नहीं है, उसमें देखा जाने से बहुत कम है। तो ये यहाँ में 15 lakhs वर्सेस 1.5 बिलियन, जी, वो 20% को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? डेफिनेटली ले जाएगा। एंड इमेजिन 36 ईयर्स से इतना तक लेके आया एंड अनदर 50 साल तक ये कंटिन्यू हुआ। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? और दूसरा बात ये भी है कि आज जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ये इतना एक्सटेंड तक पहुंच गया है कि हमारा पॉपुलेशन इतना कम है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन से देखा जाए, इट्स नॉट इवन 1%, 0.0001% है। फिर भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। दैट इज़ शॉकिंग। तो अभी हमारा ये कंसर्न था कि ये 80:20 रेशियो जो है, इट्स एन ऑब्सोलेट क्राइटेरिया, इसको रीलुक करना है एंड आई थिंक इट्स टाइम टू डू अवे विद दिस। और दूसरा रीज़न ये भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द नेबरिंग स्टेट्स, कहीं में भी 80-20 वाला क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ में 100% बोल के भी नहीं बोलता है। वहाँ में सिर्फ क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ मिजोरम वांट्स टू कंडक्ट एग्जाम, वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन है कि सबसे पहले यू हैव टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मिजोरम, दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंडली वहाँ में ये लिखा है कि यू शुड बी एबल टू स्पीक बेसिक मिजो लैंग्वेज। उसके बाद तीसरा ये मांगता है कि वहाँ का जो SC ST जो भी वो है, वहाँ का जो 2 मिसाल सर्टिफिकेट मांगता है। तो बाय डिफॉल्ट दे आर कीपिंग 100% रिजर्वेशन विदाउट इवन मेंशनिंग 100%. The same is the case with Assam, same is the case with Nagaland, same is the case with Manipur, same is the case with Sikkim. यहाँ में कहीं में भी ऐसा वो नहीं है। तो अरुणाचल में आई डू नॉट नो अभी किस लॉजिक से ये अभी उस जमाना में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, बट अभी आई थिंक इट इज़ हाई टाइम टू डू अ विद दिस। Thank you so much, Abhi. I think it should clarify the understanding of this 80-20 ratio. But sir, now before we move into the complete vision of the scraping off of the 20% as well, sir, can we know? I would like to present this situation here, sir. जैसे बोला है कि 36 years back से, so we can understand कि non-APSC settlers भी अरुणाचल में बहुत होगा, in a very large number. So, sir, many of them have had the upbringing like any of us. Yes. And we can also see in that sense कि उन लोगों को इतना exposure नहीं मिला है जहाँ से वो लोग originally है, because they have grown up here. We have the same level of, let's say, intellectual capacity. We have the same understanding of culture. In fact, they speak Arunachali Hindi. Yes. Sir, ऐसे समय में it's like अपना ही इंसान जैसा बन जाता है ना वो लोग तो sir, how does this 20% scraping off aims to deal with that? Because it's something that should be considered. I think that is a very valid point, क्योंकि हमारा यहाँ में बहुत ज़्यादा नॉन APST फ्रेंड्स हैं, नॉन APST ब्रदर सिस्टर्स हैं. They have been staying here for the last maybe 20-30 years. They have been born and brought up here. That is also a fact. इनफैक्ट जब हम लोग ये इशू को उठा रहा था, मेरा साथ में जो घूम रहा था उसमें कोई नॉन APST भी था. वो लोग का बोलना ये था कि अरे अच्छी हम लोग तो यहाँ का ही है, तो अगर कल को आप इसको कंपलसरी 80-20 हटाना है बोलने से फिर हम लोग भी उसमें एक्सक्लूड हो जाता है. तो मेरा सिंपल सा बात है, इसमें अगर हम इसको माइन्यूटली लुकिंग कंसिडरिंग ऑल द नुआंसेस दिस वीकेंड, इसको हम जो है इस हिसाब से कर सकता है कि ये जो यहाँ का जो एग्जिस्टिंग जो नॉन APST है, आई थिंक दे कैन बी गिवन सम टाइम, एटलीस्ट लाइक फॉर मे बी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ना. उसमें जैसे मिज़ोरम लोग में भी ऐसा है और असम में भी शायद ऐसा है कि अगर PRC है, अगर दैट पर्सन हैज स्टेड इन दैट प्लेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 15 years 20 years, तो ऐसा केसेस में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है. तो ये जो बात है ना 80-20 को स्क्रैप करके लेकिन एक्सेप्शन लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. फिर भी वट एवर यू हैव सेड, आई थिंक ये भी वैलिड है, ये भी हम गलत है नहीं बोलेगा. ये पॉइंट को हम एक कंसिडरेशन में रख सकता है. एंड एडिंग टू दैट, इसमें जैसे कि 20% जो है हमको अभी भी लगता है कुछ कुछ एरियाज़ में रहना है.
जैसे कि फॉर एग्जांपल सम एरियाज़ जहाँ पे हमारा ट्राइबल्स का एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर जहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट में है, या फिर जो एरिया में अभी तक हम लोग पहुँचा नहीं है, लाइक हमारा कैंडिडेट्स APSC कैंडिडेट्स जो है वो एरिया को अभी तक कवर नहीं कर पाए, तो वो एरियाज़ को हमको लगता है कि 20% एरिया उसमें भी जोड़ सकता है, क्योंकि हम जो 80-20 को स्क्रैप करने, दिस इज़ अ कॉमन डिमांड, एक कॉमन हमारा एक जेनरिक डिमांड है, बट उसका अंदर में भी वो भी एक समय देना है। ऐसे नहीं है कि हम उसको एक्सेप्शन रखा है तो थ्रू आउट एक्सेप्शन चलना है, वो भी नहीं। दैट वी कैन कीप इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इतना टाइम पीरियड तक देर विल बी एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो ये नॉन APSC का जो यहाँ पे 15-20 साल से जो यहाँ पे बोर्न एंड ब्रॉट अप है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जो बोला है, आई थिंक इट मेक सेंस। Thank you so much. So mostly तो this is the end of our discussion for this one. आपका knowledge is much more than this, but then for this one we have to confide here. Mostly तो sir, thank you so much for giving us your unfiltered opinion, because I think that's what really will connect to the public कि ये तो जो बोल रहा है दिल से बोल रहा है, and he knows what he's saying. He's seen the things and that is why. तो उसके लिए we are very much delighted. The space is always happy to have you, and I'm sure कि future maybe we will be having you for many more discussions. Yes, with this we will be closing today's discussion. See, whether or not you agree with all the conversations took place here with sir or with me, with my disagreements, one thing is important for you to note. When it comes to governance, when it comes to opportunities, when it comes to employment, this is a factor that affects all of us at certain point of our life. Because perhaps democracy is not just about staying silent. It is also about speaking up when you need to, as you are given the freedom to speak. So thank you so much. Stay tuned to the space for such more updates. This is your host signing off. Thank you so much.